ठीक है, who wants to read these sentences first? Please tell me your name and then you can start reading these sentences. So everyone has to read at least 10 sentences. So who wants to come first? Please tell me your name. Hello. Am I sitting alone in this meeting? मेरी आवाज आ रही है सभी को? मेरी आवाज आ रही है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो कोई भी इसमें आंसर नहीं कर रहा है, यस नो, सो प्लीज मेक दिस डिस्कशन इंटरेक्टिव लाइक वी डू इन आवर स्कूल. ठीक है, सो डोंट मेक इट सो बोरिंग कि मैं अकेला ही बोलते जा रहा हूँ एंड यू आर नॉट इवन रेस्पॉन्डिंग. ठीक है, सो हु वांट्स टू कम फर्स्ट? Yes, Roshni miss, do you want to read this sentence first? Please read the first 10 sentences. Please settle down and take your seats. Right. So before we start, so these are few sentences which we have to use in classroom instructions and management. Okay. So here each sentence will remain on your screen for 6 seconds. So during that 6 seconds, everyone has to read this sentence, and after this, next question will come on your screen. Okay. So I'm starting this play. ठीक है, please settle down and take your seats. 2, 1. Next. Yes, Roshni miss, read this sentence. Open your हाँ. books to page number 10. Yes, open your books to page number 10. नीचे आप टाइम भी देख सकते हैं कितने टाइम में ये हट जाएगा क्वेश्चन. ठीक है. यस. Listen carefully, everyone. यस, लिसन केयरफुली एवरीवन. नेक्स्ट. Please pay attention. Raise your hand before you speak. गुड. Keep your books on the desk. हाँ, तो यहाँ पे यूर, अच्छा ये स्टॉप नहीं हुआ क्या? 2 मिनट. अच्छा, योर बोलना. हाँ, योर. You are, हाँ, you are, your. So, Your. yes. Okay. Do not, हाँ, ये वाला पढ़िए मैम. Do not talk while I am explaining. Yes, do not talk while I am explaining. So, जब मैं बता रही हूँ तब बीच में बोलो मत. So, do not talk while I am explaining. ठीक है. Write this down in your notebook. Yes, write this down in your notebook. Your ठीक है. note. Good. So, ma'am, your 10 sentences, I think they are over. Wait, huh, let me check. ऊपर आप स्लाइड में देख भी सकते हैं. अच्छा, this is your last sentence, ma'am. Please read this last sentence. Finish your work quickly. No, no. Please read this again. You are reading it incorrectly. Finish your work quietly. Yes, finish your work quietly. चुपचाप से अपना काम कंप्लीट करो. ठीक है. So who wants to come next after Roshni miss? Come on, teacher, please participate. कौन आना चाहता है फट क्योंकि सबका नंबर आना ही है. मनोज सर, अपने कौन से, मैं उनका नाम भूल गया, सॉरी. क्या नाम है उनका? पंकज सर है क्या? सर अच्छा. बोलिए सर. हाँ हाँ. सो प्लीज सर. अच्छा, कौन पंकज सर, कौन है? अपने मनोज सर बोल रहे हैं क्या? हाँ सर. अच्छा सर, now it's your turn, so you need to read these sentences. ठीक है. So I'm playing this हाँ. presentation, so you need to read sentences from 11 to 20. ठीक है. Yes, yes sir. All right, wonderful. Meeting. Yes sir, please read this sentence. Yes. Start talking and focus on your work. Okay, Please so sit properly. yes, so everyone, you will get 6 seconds, 6 seconds of time to read this sentence. ठीक है. Please sit properly. Stand up when you answer. Stand up when you answer. Speak loudly and clearly. हाँ, yes, तो यहाँ पे
स्पीक आना चाहिए ना। मैंने अभी देखा भी है कुछ किसी को होता है स्टार बोलते हैं या स्कूटर बोलते हैं या स्कूल बोलते हैं, सो डू नॉट यूज दैट ई, in these words. So speak loudly and clearly. Sir, please say this sentence again. Speak loudly and clearly. Wonderful. This time it is correct. Yes. Do not shout in the classroom. Yes. Do not shout in the classroom. Work in pairs or public groups. Yes. Time is up. Please stop writing. Yes. Check your answer carefully. Yes. Check your answer carefully. Turn the next page. Yes. Turn to the next page. Yes. Turn to the Next next page. page. Yes. Keep your classroom clean. Yes. So your 10 Please sentences are, maintain silence. yes, sir. Your 10 sentences are over. Thank you so much. Now who wants to come next? Next, please tell me your name. Preeti Mehra. Preeti Mehra, ma'am. Okay, ma'am. So you need to read till 32 सेंटेंस तक जाना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। Read this Do sentence, not ma'am. run inside. Do not run inside the classroom. Good. Take out your homework notebooks. Keep your bags under the desk. Keep your bags under the desk. Wait for your turn. Wait for your turn. Yes. Follow the instruction carefully. Carefully, huh? Yes. Please line up properly. हाँ, ये वाला सेंटेंस हम लोग असेंबली में भी यूज कर सकते हैं और जब क्लासेस बाहर You may जाते sit down. हैं। यस, यू मे सिट डाउन। Come to the front of the classroom. Class. Read the question once again. यस, Try to solve it on your own. ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। अपने आप से सॉल्व करो। हाँ, Ask if you have any doubts. नो डाउट्स मैम, डाउट है ना, डाउट्स। यस, आस्क इफ यू हैव एनी डाउट्स, है ना, अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। आस्क इफ यू हैव एनी डाउट्स। सो यहाँ पे जो बी है दिस इज साइलेंट, सो डाउट्स। हाँ, ठीक है। नाउ आफ्टर प्रीति मिस, हु वांट्स टू कम नेक्स्ट? कौन आ रहा है नेक्स्ट? यार मैं बोल रही हूँ हर्षा। मैं, अच्छा, हर्षा मिस है। ओके, हर्षा मिस, आपको इस सेंटेंस की बात पढ़ना है। हर सेंटेंस 6 सेकंड्स के लिए आपके स्क्रीन पे रहेगा। सो विद इन दैट 6 सेकंड्स यू नीड टू रीड दिस सेंटेंस। ओके सर। ये स्टार्ट। डू नॉट डिस्टर्ब अदर्स। यस, बी रिस्पेक्टफुल टू एवरीवन। बी रिस्पेक्टफुल टू एवरीवन। लेट अस रिवाइज द प्रीवियस लेसन। यस, कॉपी द आंसर नीटली। यस, स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन्स। कीप योर वॉइस लो। यस, क्लास मॉनिटर प्लीज हेल्प मी। द बेल हैज रन, यू मे लीव। यस। सो द बेल वेरी हैज गुड। रन। यस, You move. You, sir, excellent अच्छा, effort. पीछे वाला चाहिए तो पीछे वाला भी ले लो, या Yes, ये, sir, yes. हाँ, ये वाला वापस रीड करो मैम, ये वाला। Okay. The bell has run. You may leave. यस, द बेल हैज रन, यू मे लीव। Very good. Well done. Excellent effort. That's good answer. Yeah, that's a good answer. That's a good answer. If any of your student answers any question, so you can use this sentence. That's a good answer. Yeah, That's a good answer. good. Next. Okay. Hmm. You can do better next time. Yes, you can do better You next can time. do better next time.
हाँ, अगर किसी बच्चे के कम मार्क्स आए हुए हैं सो वी कैन यूज दिस सेंटेंस देयर, यू कैन डू बेटर नेक्स्ट टाइम, है ना। अगर किसी के कम मार्क्स आए, कोई फेल हो गया, सो यू कैन डू बेटर नेक्स्ट टाइम। Keep practicing regularly. कीप प्रैक्टिसिंग रेगुलरली। यस। Don't worry, try again. डोंट वरी, ट्राई अगेन। यस। I appreciate your honesty. Again, I want to correct all the teachers here because I have seen lot of teachers and students, they read this sentence, this word honesty. It is not honesty. अगर किसी को याद होगा, मैंने किसी को करेक्ट भी किया था, it is honesty. So here the letter H is silent. ये जो H है ये silent है, so यहाँ पे ह का साउंड आना नहीं चाहिए. So I appreciate your honesty. Okay. I appreciate your honesty. यस, सो ये क्या है, छोटी छोटी चीज, जो चीजें हैं ये बहुत टीचर्स दूसरे स्कूल्स में चेक करते हैं. सो आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी. सो इसके बाद अगर कभी भी ऑनेस्टी वर्ड आएगा तो आप इसको ऑनेस्टी नहीं पढ़ेंगे, इसको ऑनेस्टी पढ़ेंगे, है ना. सो आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी मतलब मैं आपकी ईमानदारी की तारीफ करता हूँ या करती हूँ. ठीक है. यस, मूविंग टू नेक्स्ट सेंटेंस. Please improve your handwriting. प्लीज इम्प्रूव योर हैंडराइटिंग. सो यहाँ पे Handwriting. योर, हाँ, योर बहुत प्रॉपरली आना चाहिए. प्लीज इम्प्रूव योर हैंडराइटिंग. ठीक है. प्लीज इम्प्रूव योर हैंडराइटिंग. ठीक. नेक्स्ट. You need to concentrate more. यस, यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट मोर. That was not appropriate behavior. यस, दैट वाज नॉट अप्रोप्रिएट बिहेवियर. मतलब अप्रोप्रिएट मतलब वो सही आपका बिहेवियर नहीं है. दैट वाज नॉट अप्रोप्रिएट बिहेवियर. ठीक है. नेक्स्ट. Please follow school rules. प्लीज फॉलो स्कूल रूल्स. ठीक है. सो आई थिंक योर 10 sentences are over. So who wants to come next after Harsha miss? कौन 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 है मीटिंग में, प्लीज अपना नाम खुद ले लो. इतने ही हैं तो फिर हम वापस से स्टार्ट करते हैं. कोई बच गया है, कोई टीचर बच गया है जिसका रीडिंग बाकी है? यस सर, हाँ हाँ. मेरा बाकी है. आपका नाम मैम, सॉरी मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ, मुझे दिख नहीं मनीषा रहा. मिस. वर्षा मिस. मनीषा मिस. मनीषा मिस. सॉरी, मुझे नाम क्या बोल रहे हैं? मनीषा मिस. अच्छा मैम, प्लीज रीड करो मनीषा बस. मिस सर. अच्छा अच्छा, मनीषा मिस, सॉरी. मनीषा मिस, प्लीज रीड यहाँ से करो. प्लीज फॉलो स्कूल रूल्स. यस, प्लीज फॉलो स्कूल रूल्स. आई एक्सपेक्ट बेटर डिसिप्लिन फ्रॉम यू. यस, अगर कोई बच्चा बार बार मस्ती करता है या सुन ही नहीं रहा है तो वी कैन यूज दिस सेंटेंस देयर. आई एक्सपेक्ट बेटर डिसिप्लिन फ्रॉम यू, है ना. जैसे एक वो दक्ष लड़का है क्लास 4 में शायद, तो उसको हम बोल सकते हैं. और बहुत सारे बच्चे हैं जो सुनते नहीं है बात को. सो आई एक्सपेक्ट बेटर डिसिप्लिन फ्रॉम यू. सो हम आपसे और अच्छे डिसिप्लिन की आशा करते हैं, इस तरीके से. आई एक्सपेक्ट बेटर Yes. डिसिप्लिन फ्रॉम यू. यस. दिस इज योर फाइनल वार्निंग. यस, दिस इज योर फाइनल वार्निंग. अगर बार बार बोलने के बाद भी अगर कोई बच्चा सुधरने को तैयार नहीं है, so at that point we can use this sentence that this is your final warning. यू हैव shown गुड इम्प्रूवमेंट. You have shown, है ना. shown इसको बोलना है shown. You have shown good improvement. Good तुमने बहुत, हाँ, इम्प्रूवमेंट. तुमने बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाया है इस एग्जाम में या फिर अपने होमवर्क में. You have shown good improvement. Yes. Next. आई एम प्राउड ऑफ यू योर प्रोग्रेस. I am proud of your progress. I am proud of your progress. जिस तरीके से तुम बेटर बेटर करते जा रहे हो, we are really proud of your progress. Next. Take responsibility for your actions. Yes, take responsibility for your action. This work is incomplete. This work is incomplete. Yes. Please submit your assignment on time. Yes, please submit your assignment on time. Please submit your assignment on time. और ये वाले जितने भी सेंटेंसेस है हम सबको बहुत बार ऐसे बोलना है, क्योंकि हमारे टंग को हैबिट होनी चाहिए कि हाँ ये वाला सेंटेंस मैंने पढ़ा था. अगर हम बार बार बोलेंगे तो ये these sentences will come automatically. ठीक है. ऐसा हमको सोचना नहीं पड़ेगा. Yes, sir. जैसे ही आपके पास सिचुएशन आई, प्लीज सबमिट योर असाइनमेंट ऑन टाइम. ठीक है. नेक्स्ट. On time.
Your performance has improved. Improved. Your performance has improved. Improved. Yes. आपकी performance last time से better हो गई है. So your performance has improved this time. Yeah? Next. You need to work harder. Yes, you need to work harder. So again, we can use this sentence for a weak student. अगर उसके marks कम आ रहे हैं या fail हो रहा है, so you need to work harder. Avoid repeating the same mistake. Yes, avoid repeating the same mistake. तो एक ही mistake बार बार कर रहा है, so you should avoid repeating the same mistake. Next. Be confident while answering. Yes, be confident while answering. जब भी आंसर करते हो तो बहुत कॉन्फिडेंटली दिया करो. So be confident while answering. क्योंकि कुछ कुछ बच्चे आंसर करते हैं बट वो उतने कॉन्फिडेंट नहीं होते, नर्वस होते हैं कि वह ऐसा मेरे लगता है जैसे कि वह हमसे ही पूछ रहे हैं कि जैसे भारत की राजधानी क्या है, तो मैम दिल्ली. तो ऐसा लगता है कि हमसे ही पूछ रहे हैं कि भाई दिल्ली है या नहीं है. सो उस टाइम पे वी कैन यूज दिस सेंटेंस, बी कॉन्फिडेंट व्हाइल आंसरिंग. यस. नेक्स्ट. Yes. Respect your classmates. Respect your classmates. Yes, respect your classmates. Control your behavior. Control your behavior. Good. Thank you for cooperating. Yes, thank you for cooperating. कि मेरी बात सुनने के लिए या बात मानने के लिए धन्यवाद. Thank you for coming to the meeting. हाँ, ये वाला मैं यूज कर सकता हूँ. जैसे अभी आप सभी इस मीटिंग में आए हैं, सो आई कैन यूज दिस सेंटेंस दैट थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग टू दिस मीटिंग. है ना? थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग टू द मीटिंग. यस. So I think your 10 sentences are over. Who wants to come next? Yes, Shilpa Miss. Welcome, Shilpa Miss. Please start reading from this sentence. Yes. हम यहाँ पे टॉप पे देख सकते हैं. सो अभी जैसे हमारा सेक्शन सी चल रहा है यहाँ टॉप पे, कम्युनिकेशन विद पेरेंट्स. सो अब ये जितने भी सेंटेंसेस आएंगे, वी कैन यूज दिस सेंटेंसेस विद पेरेंट्स. ठीक है? ड्यूरिंग पेरेंट्स टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग या फिर कोई भी पेरेंट आता है, सो ये वाले सेंटेंसेस है जो हम उनके साथ यूज कर सकते हैं. सो यस मैम, प्लीज रीड दिस सेंटेंस. Thank you for coming to the meeting. Yes. Your child is doing well. Admit. Sir, please tell me this word meaning. Yes ma'am, this is your child is doing well academically. Academically मतलब पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहा है. Academically. Yes, academic. Yes, academically. Your child is doing well academically. Academically, yes. हाँ, हम ये यूज कर सकते हैं भले वो पेरेंट्स को समझ में ना आए, बट बीइंग अ टीचर वी शुड यूज these words. हाँ, your child is doing well academically. हाँ, next. Yes. Your Yes. child needs to focus more on studies. Yes, your child needs to focus more on studies. Regular attendance is very important. Yes, regular attendance is very important. Please answer homework is complete on time. Yes, please ensure homework is completed on time. कि भाई ध्यान रखना है कि आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाए. So please ensure. Ma'am, please read this sentence again. Please ensure homework is complete on time. Yes, please ensure that your homework is completed on time. Next. Your child is well behaved in class. Yes, your child is well behaved in class. आपका In बच्चा class. क्लास में या आपका बच्चा क्लास में बहुत ही well behaved है ना? मतलब किसी को परेशान नहीं करता, किसी का डिसरेस्पेक्ट नहीं करता है. पढ़ाई लिखाई में अच्छा है, इस वहां पे हम यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट. There has been improvement in performance. There has been improvement in performance. Next. Your child needs more practice in this subject. Yes, your child needs more practice in this subject. Your child needs more practice in this subject. We appreciate your support at home. हाँ, हम लोग वही कंप्लेन करते हैं कि पेरेंट्स दे डोंट टीच देयर स्टूडेंट्स एट होम. सो अगर कोई पेरेंट्स बोलता है कि नहीं हम हमारे बच्चे के लिए टाइम निकालते हैं, हम उनको पढ़ाते हैं,
so that time we can use this sentence that we appreciate your support at home, है ना? We appreciate your support at home. Next. Please monitor your child's study routine. Please monitor your child's study routine. हाँ, कि घर पे वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है. So please monitor your child's study routine. Next. Your child अच्छा, is sorry, हाँ. होगा आंसर ये. Your अच्छा, child is actually practicing in class. अब मैम please read this sentence Participating. again. Your child is actively participating in class. Yes, so कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ नहीं. तो जो कुछ करता है बच्चा, उसका पेरेंट्स बैठा है, तो योर चाइल्ड इज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन क्लास. सो भाई आंसर देता है, कोई भी काम बोलो तो उसमें पार्टिसिपेट करता है. We will work together for your child progress. Yes, we will work together for your child's progress. ये जो यहाँ पे apostrophe s आता है, इसको बहुत क्लियरली सुनाई देना चाहिए, ठीक है? So we will work together for your child's progress. Child's progress. Yes, कि बच्चे के प्रोग्रेस के लिए हम सब मिलके काम करेंगे इस तरीके से. Next. Please check the school diary regularly. Yes, please check the school diary regularly. Your child must follow school discipline. Your child must follow school discipline. Good. Thank you for your cooperation. Yes. Feel free to contact us if you have concerns, sir. Yes, ma'am, this is concerns. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, so feel free to contact us, है ना? So feel free to contact us if you have any concerns. अगर आपको कुछ भी पूछना है कि भाई एग्जाम कब है, सिलेबस कितना है, so feel free to contact us if you have any concerns. क्या बोलते हैं? Concern. Ma'am, please read this sentence again. Feel free to contact us if you have concerns. Concerns, yes. Feel free to contact. Feel free to contact us if you have concerns. अगर कोई भी प्रॉब्लम है, if you have any doubts, so please feel free to call us. Next. अच्छा, अभी और कोई बाकी है? हाँ सर, मैं बाकी हूँ. अच्छा मैम, आप पढ़िए, आपका नाम बताइए. अच्छा, कोमल मिस है, ठीक है. मैम यहाँ से पढ़िए. The exam schedule will be shared soon. No, ma'am. The exam schedule will be shared soon. कि जो एग्जाम का स्केड्यूल है, जो एग्जाम का टाइम टेबल है, वो बहुत जल्द आपके साथ शेयर किया जाएगा. तो द एग्जाम स्केड्यूल. तो हाँ, तो इसको जो ये वाला वर्ड है स्केड्यूल, इसको आधे शेड्यूल भी बोलते हैं, आधे स्केड्यूल भी बोलते हैं. सो बोथ आर करेक्ट. एक यूएस इंग्लिश में होता है, एक अमेरिकन एक यूके इंग्लिश में होता है, एक यूएस इंग्लिश में होता है. सो द एग्जाम स्केड्यूल भी बोल सकते हो, शेड्यूल भी बोल सकते हो. बट स्केड्यूल मैं स्केड्यूल बोलता हूँ. सो द एग्जाम स्केड्यूल विल शेयर सून. जो भी एग्जाम का स्केड्यूल है वो जल्दी शेयर किया जाएगा. नेक्स्ट. Attendance has been irregular. Attendance has been irregular. Parents teacher cooperation is essential. No, this is parents teacher cooperation is essential. Essential मतलब important है, कि दोनों का, टीचर का एंड पेरेंट्स का cooperation is essential. essential. ये essential मतलब important है, जरूरी है. नेक्स्ट. Let us know if your child needs special support. अच्छा मैम, यहाँ पे ये वाला वर्ड गलत हो गया. दिस इज लेट अस नो. नाउन है. अगर नाउ हो, हाँ नाउ होता तो इतना ही होता, बट लेट अस नो. लेट अस नो इफ योर चाइल्ड नीड्स स्पेशल सपोर्ट. कि हमको बताइए अगर आपके बच्चे को स्पेशल सपोर्ट चाहिए तो हमको बताइए, है ना? लेट अस नो इफ योर चाइल्ड नीड्स स्पेशल सपोर्ट. लेट अस नो इफ योर चाइल्ड नीड्स स्पेशल सपोर्ट. ठीक है. नेक्स्ट. Please attend the staff meeting. यस, अब ये वाला देखो, ये हमारा सेक्शन डी स्टार्ट हो गया. यहाँ पे क्या है? स्टाफ एंड स्कूल कम्युनिकेशन. सो हम अगर टीचर्स आपस में कुछ बात कर रहे हैं तो वी कैन यूज दिस सेंटेंसेस. ठीक है. प्लीज अटेंड द स्टाफ मीटिंग. नेक्स्ट. The meeting will start on time.
The meeting will start on time. Kindly submit the reports today. Kindly submit the report today. Please follow the school guidelines. 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 Yes, please follow the school guidelines. Next. The deadline must be respected. No, ma'am. Please read this word again. This is incorrectly read. Deadline. Yes, deadline. So the deadline must be respected. Deadline. तो जो भी हमको काम बोला है कि इतने तारीख तक फीस जमा हो जानी चाहिए, तो द डेडलाइन मस्ट बी रेस्पेक्टेड. इतने टाइम तक अपना प्रैक्टिस हो जाना चाहिए. सो दैट टाइम वी कैन यूज द डेडलाइन मस्ट बी रेस्पेक्टेड, है ना. ठीक है. इन मैडम की बात कोई बचता है और कोई है? सर, मैडम, क्योंकि अभी लास्ट के 10 सेंटेंस बाकी है. किसी और को रीड करने हैं? कोई बाकी है? I'm Nirmala Surotlam, sir. अच्छा, हाँ मैम, निर्मला मैम, अभी 10 सेंटेंस बाकी है. अब आप पढ़िए, ठीक है. 91 से आप पढ़िए, यहाँ से आप Yes, पढ़िए. sir. Yes, sir. हाँ. Inform the studies accordingly. Yeah, inform the students accordingly. Yes. Coordinate with the class teacher. Yes. Yes. Please update the records. Yes. Please update the records. Yeah, records. Let us maintain professional contact. No. Conduct. Conduct. Let us maintain professional conduct. Next. Okay, sir. Share the circular with parents. Share the circular with parents. Yes. The schedule has been revised. The schedule has been revised. Okay. Please manage your class especially. No, ma'am. This Efficient. is Efficient. efficiently. Yes. So please manage your Efficient. class efficiently. Yes. Please manage your class efficiently. Yes. Report away issues immediately. Yes. Report any issues immediately. Immediately. Next. Thank you for your cooperation. Yes. Thank you for your cooperation. Let us work as a team for students' success. Yes, let us work as a team for students' success. Let us work as a team for students' success. So with this, all 100 sentences are covered. So कैसा लगा आपको ये वाला presentation? Sir, very nice. Very nice. So ये मैंने लास्ट के बस 15 मिनट्स में बनाया, क्योंकि मुझे वही लग रहा था कि मैं कैसे या वेबसाइट से पढ़ाऊँ या प्रेजेंटेशन से बनाऊँ. So ये बस लास्ट के 15-20 मिनट्स में मैंने प्रिपेयर किया है. चलो now. Nice, sir. Nice program. Nice meeting, sir. Very nice meeting. Very nice meeting, sir. अच्छा, लेकिन अभी Nice मीटिंग meeting. ओवर हुई नहीं है. अभी हाफ ऑफ द मीटिंग ओवर हुआ है. सो ये था हमारा कॉमन था, Okay. जहाँ पे हमको 100 सेंटेंसेस पढ़ने थे. बट नाउ एक और प्रेजेंटेशन है जिसमें हमारे सब्जेक्ट्स के कुछ क्वेश्चंस आएंगे. सो आई हैव इंक्लूडेड Okay, sir. हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस. सो दीज 4 Okay, sir. sentences. So from each subject, we will get 25 questions with 4 options. So out of these 4 options, only one option will be correct. ठीक है. So इस तरीके से एक गेम भी हो जाएगा और हमारा जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो भी क्लियर हो जाएगा. ठीक है. So एक बार मैं मीटिंग में देख लेता हूँ कितने लोग अवेलेबल है. आई थिंक 8, 9, 10, 11. सो देख लेता हूँ कौन कौन है. हर्षा मिस है, कोमल मिस है, मनीषा मिस है, मनोज सर हैं, देन निर्मला मिस है, प्रीति मेहरा मिस है, रोशनी मैम है, शिल्पा मिस है, उपाली मैम है. अच्छा, उपाली मैम ने तो पढ़ा ही नहीं. मैम आप हो अवेलेबल? उपाली मैम, उपाली मिस, उपाली मिस, आप सुन सकते हैं क्या मुझे? लिस्ट में तो दिख रहा है उनका नाम. एंड वर्षा राजपूत मैम. हर्षा मैम, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. गुड. कोमल मैम, आ Clearly. रही है मेरी आवाज? कोमल मैम, मेरी आवाज आ रही Yes, है? sir. Yes, sir. Yes, ठीक है. sir. Yes, sir. मैं बस वही चेक कर रहा हूँ कि सुन रहे हैं या मोबाइल में बस लॉगिन करके कहीं पे रख दिया है इसको. No, no, इसीलिए. हम मनीषा मैम, आप हो अवेलेबल? आवाज आ रही है? Hello, sir. Am I audible, sir? यस, यू आर ऑडिबल. यस Hello. मैम, यस, यू आर Yes, sir. ऑडिबल. I'm Upali. ओके, उपाली मैम.
I don't think so कि मैंने वो questions रीड मतलब sentence रीड करने का तो मैक्स टू मैक्स मैं यूज करती हूँ सर. So ओके मैंने ओके, चांस दिया सबको पढ़ने का. चलो ठीक है, थैंक यू As you सो know, मच. I'm using all these sentences in my class. Okay, okay, not an issue, but thank you for So, your support. But so now we are starting our next presentation. So as I said earlier, so I have included 4 subjects, and in each subject I have included 25 questions with 4 options. So we need to pick one correct option, ठीक है? So अभी देखते हैं पहला सब्जेक्ट कौन सा आता है. मैं अपना वो वाला स्क्रीन शेयर करता हूँ आप सभी के साथ. इस वाले को हटा लेता हूँ. Stop sharing this. And I have another yes. Before is a noun. Is my GK presentation visible to everyone? Is my screen is visible to everyone? Yes, no, maybe. Okay, ठीक है. Yes, sir. तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. यहाँ से स्टार्ट करते हैं. सो कौन कौन है इंग्लिश टीचर अवेलेबल इन दिस मीटिंग? इंग्लिश टीचर जो इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाते हैं. it's me, Upali. रूपाली मैम. ओके मैम. प्लीज रीड दिस क्वेश्चन एंड प्लीज पिक द राइट ऑप्शन. What is the past tense of eat? Yes. So what is the past tense of eat? Ate. Ate. Okay. It cannot. ओके, तो पास्ट टेंस पूछा है तो इसमें देख लेते हैं हम. ये मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ. अच्छा, इसमें 8 सेकंड्स लिया हुआ है इसने. Yes, 8 is the correct answer. Now next. Which word is noun? Book. Okay. ठीक है. Read this sentence. What is the opposite of hot? Cold. Okay. Cold is correct. Which sentence is correct? She go to the school. She goes to school. She going to school. She gone to school. She going to school. अच्छा, ये वाला अभी Or she सेंटेंस go मैंने to school. मैंने क्लास में रीड भी करवाया था. कुछ टीचर्स को बताया भी था कि जब थर्ड पर्सन आता है तो हम क्या यूज करते हैं. सो वहां से पता लग रहा होगा शायद आपको. सो उपाली मिस, विच ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू? She going to school or she शीज. go to school. Both. Okay, so according to me, this should be correct one. She goes to school. ऐसा होना चाहिए, बट देख लेते हैं. इवन आई कुड ऑल्सो बी इनकरेक्ट. यस, सो शी गोज टू. अगर अगर किसी टीचर को याद है ना, मैंने बताया था ना, ही और शी के साथ गोज ये सब आता है, डज आता है ना. सर आप सिंपल लैंग्वेज में बात कर लो. She go to school और she is going to school. बोथ आ रहा ना. गोज मतलब ये थर्ड ये हो जाता है. गो एक बार पीछे. शी. जाने का आपका. नहीं मैम, यहाँ पे अगर होता तो शी इज आता. यहाँ पे शी इज आता. शी इज गोइंग टू स्कूल आता, बट यहाँ पे इज मिसिंग है. शी गो टू स्कूल ये भी नहीं आया क्योंकि शी के साथ गोज आएगा. तो शी गोज टू स्कूल, दिस इज करेक्ट. शी गॉन टू स्कूल नहीं. सो यहाँ पे भी ये करेक्ट हो सकता था, बट अगर यहाँ पे शायद इज लगा देते तो बेटर होता. शी इज गोइंग टू स्कूल. वो स्कूल जा रही है ऐसे. ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट. अच्छा, नेक्स्ट पर. हाँ, ये तो मुझे खुद को भी नहीं पता होगा. वेट, चेक करने दो. What does benevolent means? Benevolent मुझे भी नहीं पता. benevolent एक benevolent नहीं, मैंने भी सुना नहीं है कभी. देख लेते हैं क्या आंसर बताता है. So kind and generous. Kind and generous. Okay. Which word is an adjective?
एडजेक्टिव मतलब क्या होता है? ये अगेन पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है एडजेक्टिव। किसी किसी को अगर आंसर पिक करना है इसमें से तो प्लीज पिक। विच वर्ड इज एन एडजेक्टिव? क्विकली, ब्यूटीफुल, रन, ईट। Beautiful. Beautiful. ब्यूटीफुल। Beautiful. दो इसको प्ले कर ले। Hello. यस, Yes, sir. Am ब्यूटीफुल। I audible? यस यस, यू आर ऑडिबल मैम। यस, यू आर ऑडिबल। ओके बीच मैम बीच प्लीज। में मेरे आवाज आपको आ नहीं रही है। आ रही है मैम, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। प्लीज रीड दिस क्वेश्चन। What is the synonym of happy? Joyful. जॉयफुल, यस, सिनोनिम मतलब होता है समानार्थी शब्द। सो हैप्पी मतलब खुश, तो जॉयफुल मतलब भी खुश है। बस यहाँ पे एंटोनिम हो जाता तो हम फिर हैप्पी का सैड कर लेते कुछ और। बट जॉयफुल इज करेक्ट क्योंकि बोथ है सिमिलर मीनिंग, सेम मीनिंग। यस, जॉयफुल इज करेक्ट। विच वर्ड इज अ वर्ब? Dance, sir. यस, डांस। वर्ब, वर्ब मतलब होता है क्रिया। जब हम कोई भी काम करते हैं तो यहाँ पे जो डांस है दैट इज अ वर्ब, वो क्रिया है। नेक्स्ट। What is the plural of child? Children. Children. यस, सो चिल्ड्रन इज Children. करेक्ट। सो व्हाट इज द प्लूरल ऑफ चाइल्ड? चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है। मैंने बहुत सारे टीचर्स को भी देखा वो चिल्ड्रंस यूज करते हैं, तो नेवर से चिल्ड्रंस, बिकॉज चिल्ड्रन इज ऑलरेडी प्लूरल। हम उसमें एक और एस लगाएंगे तो प्लूरल का भी प्लूरल हो जाएगा। सो नेवर से गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, है ना? सो Children. चिल्ड्रन, सिर्फ चिल्ड्रन करना है, पीछे एस कभी भी नहीं लगाना है, ठीक है? चिल्ड्रन। सो चिल्ड्रन चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म है। चाइल्ड एक बच्चा है तो चाइल्ड है, बहुत सारे बच्चे हैं तो चिल्ड्रन है। सो चिल्ड्रंस कभी भी यूज नहीं करना है। ठीक है, वन लास्ट क्वेश्चन फॉर उपाली मिस। अच्छा, ये आ गया क्या इसमें? अच्छा, यस, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन मैम। Husband. विच वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली? यहाँ पे कौन सा वर्ड है जो करेक्टली स्पेल्ड किया हुआ है? Correct. दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। First word, sir. फर्स्ट वाला सही है? Husband. Yes, sir. हाँ, फर्स्ट वाला ही सही है, मेरे हिसाब से भी फर्स्ट वाला ही सही है। ओए, ये तो गलत हो गया। अच्छा, Husband. डबल डबल सी और डबल आर आता है, ठीक है। व्हाट डज ऑब्सोलीट मीन? अच्छा, व्हाट डज ऑब्सोलीट मीन्स? ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट मतलब, जहां तक मुझे पता है इसका इसका आंसर होगा, ये वाला होगा। द थिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज, जो चीज अब गायब हो गई है, जो यूज में नहीं है। सपोज जैसे पहले ये सीडी मिलती थी, पहले सीडी प्लेयर और डीवीडी प्लेयर मिलते थे, आजकल वो चमकीली सीडी देखने को ही नहीं मिलती है। तो हम बोल सकते हैं कि दैट सीडी, दैट कॉम्पैक्ट डिस्क इज ऑब्सोलीट नाउ, मतलब दीज सीडीज आर नो लॉन्गर इन यूज। मेरे हिसाब से ऐसा है, देखते हैं क्या है इसका आंसर। यस, नो लॉन्गर इन यूज इज करेक्ट। Yes, so who wants to read next after Upali Miss? Who wants to come next? जल्दी जल्दी अपना नाम लो। Sunshine. कौन कौन आना चाहता है नेक्स्ट? कौन? मनीषा मिस, निर्मला मैम, प्रीति मैम, आ जाइए, फटाफट रीड करना है, आंसर देना है। किसी का कोई नॉलेज का टेस्ट नहीं हो रहा है, दिस इज फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ आवर ओन नॉलेज। कौन आना चाहता है प्लीज टेल। हाँ, Sunshine, sir. ओके, निर्मला Sunshine. मिस, निर्मला मिस, ओके मैम, प्लीज रीड दिस सेंटेंस। It is compound words. विच इज अ कंपाउंड वर्ड? कंपाउंड वर्ड कौन सा है वो वाला देखना है। सो कंपाउंड वर्ड मतलब, समिश्र शब्द. तो हाँ, तो मैम अकॉर्डिंग टू यू, समिश्र शब्द. यस मैम, सो अकॉर्डिंग टू यू विच इज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ दिस फोर? विच इज अ कंपाउंड वर्ड? कौन सा Yes. वाला ऑप्शन लॉक कर Sunshine. दिया जाए? सनशाइन, ओके।
बिकॉज यहाँ पे सन एंड शाइन एक साथ आ रहे हैं, इस वजह से मेरे हिसाब से भी यही होना चाहिए, सनशाइन इज अ कंपाउंड वर्ड. सो लेट अस सी. Yes, sunshine is correct. Yes, please read this question, ma'am. What is the opposite of dark? Light. Yes, light. Yes, light is correct. Very nice. Which word is an adverb? So adverb क्या होता है हिंदी में, क्या बोलते हैं adverb को? Anyone can answer Quietly, adverb. sir. Quietly. Yes, sir. Okay. या पे So ये होगा क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता Yes, बता रहा है. So yes, quietly is absolutely correct. Quietly. What does persistent mean? Mean. Persistent, yes, मतलब weak, stubborn and determined, lazy and confused. स्टबन सेकंड मतलब होता है सर शायद, हाँ स्टबन मतलब होता है शायद जिद्दी होता है, या फिर बहुत डिटरमाइन अपने काम की तरफ, है ना. तो मुझे भी वही लग रहा है, परसिस्टेंट मतलब यही वाला होगा, स्टबन एंड डिटरमाइन. सो लेट अस सी द आंसर. स्टबन एंड डिटरमाइन, करेक्ट. Which sentence has correct punctuation? Punctuation mark हमको देखना है. So who wants to answer this? Please answer quickly. व्हाट Which इज योर sent? नेम व्हाट So इज which योर थर्ड third? कौन सा, ये वाला, ये वाला, ये वाला? सर व्हाट इज योर नेम हाँ तो ये वाला सही है, ये वाला या फिर ये वाला? सर ये वाला Second number, sir. Second तो number. ये वाला. थर्ड सर थर्ड अच्छा फर्स्ट सेकंड थर्ड हाँ मैं बता देता हूँ, ये वाला फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर है. Name. ये वाला फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर है. थर्ड सर थर्ड थर्ड, यस. सो व्हाट, क्योंकि यहाँ पे एपोस्ट्रोफी है ना, तो एपोस्ट्रोफी मतलब व्हाट इज हो गया, व्हाट इज योर नेम. तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी नहीं है, सब कुछ सेम है, बट यहाँ पे एक देखो एपोस्ट्रोफी छोटा वाला साइन नहीं है. सो फॉर दैट रीजन ये थर्ड वाला सही होगा. Yes, what's your name is correct. Preposition. Preposition क्या होता है? Who wants to answer this? What is preposition? So preposition is a word which tell us about the position of any object. So Under. under मतलब नीचे. अगर अभी मेरे पैर टेबल के नीचे है, so my legs are under the table. So कहाँ पे बता रहे हैं कि नीचे है इस टेबल के. So yes, under is the right answer. अंडर preposition है, और इसके नाम से भी हमें पता लग जाता है. देखो पोजीशन यहाँ पे आ जाता है, तो पोजीशन से हमको पता लग जाना चाहिए. तो इसमें अंडर, ठीक है, अबव, बिटवीन, बिहाइंड, ये वाले वर्ड्स आते हैं. यस, अंडर इज करेक्ट. नेक्स्ट, ये वाला तो एकदम बच्चों का बच्चा क्वेश्चन आ चुका है. विच वर्ड राइम्स विथ कैट? सो इट इज बैट. व्हाट डज ट्रांसपेरेंट मीन? अच्छा, तो ये वाला तो निर्मला मिस आपके क्लास में आया था, इफ यू रिमेम्बर, व्हेन आई वाज सिटिंग इन योर क्लास, यस सर सी है ना. थ्रू सी थ्रू, यस. ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब सी थ्रू, जिसमें से हम आर पार देख सकते हैं. सो कौन कौन से तीन शब्द थे मैम, प्लीज आप बताएंगे उस चैप्टर में? ट्रांसपेरेंट थे और कौन से दो थे? ट्रांसुलेंट एंड ओपेक यस. सो ट्रांसुलेंट यस, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट. लेंस एंड ओपेक यस. सो Opaque. ओपेक, ओपेक, यस. सो ट्रांसपेरेंट मतलब सी थ्रू, जिसमें से हम आर पार देख सकते हैं, ठीक है. देन ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट वो होता है जिसमें हम आर पार बहुत क्लियरली नहीं देख सकते, हमको पता है कि इसके पीछे कुछ है, मतलब कोई कोई बच्चा खड़ा है, लेकिन कौन खड़ा है हमें नहीं पता है, ठीक है. एंड देन उसके Yes. बाद आता है अपना ओपेक. ओपेक मतलब कोई ऐसी चीज जिसकी हम आर पार देख ही नहीं सकते, है ना. कोई जैसे दीवार है, दीवार के आर पार नहीं देख सकते कौन खड़ा है, ठीक है. मूविंग टू नेक्स्ट. सी थ्रू करेक्ट होना चाहिए इसका. यस, सी थ्रू इज करेक्ट. विच इज अ प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन कौन सा इसमें से? इसमें से इंग्लिश टीचर, कुड यू प्लीज हेल्प अस? Nandan.
लंदन इज अ London. प्रॉपर नाउन, यस लंदन इज अ प्रॉपर नाउन। और ये बाकी के कौन से नाउन हो गए? रिवर, ट्री एंड हाउस, कौन से किस टाइप के नाउन हो गए ये लोग? Common noun. दिस इज अ कॉमन नाउन, वेरी नाइस, यस लंदन इज अ प्रॉपर नाउन। So what is the present tense of went? Went का present tense क्या होगा? Who can answer this? Going. Present tense Going. of going. और किसी को बताना है? What is the present tense of went? Go. Gone. Gone. हाँ मुझे go लग रहा है, so I'll go with go. So let's see what happens. Go का went होता है, देखते हैं। Yes, go. ठीक है। humble हम सभी को पता ही है। What does humble means? हम बोलते हैं ना, this is my humble request to you. So humble मतलब क्या होता है? Proud, arrogant, modest and rich. Modest. Modest. और बाकी के टीचर्स? यस मनीषा मैम, आपका क्या आंसर होना चाहिए इसमें? Modest. मॉडेस्ट। सो मॉडेस्ट मतलब वही होगा हम्बल जिसको हम बोलते हैं, तो मेरे हिसाब से भी मॉडेस्ट ही होना चाहिए। यस मॉडेस्ट इज द राइट आंसर। दैट इज विच वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली? इसमें से कौन सा वर्ड है जो करेक्टली लिखा हुआ है? First. दिस इज रियली, हाँ फर्स्ट सेकंड Second में number, sir. कंफ्यूजन हो गई। सेकंड, ओके देखते हैं इसमें क्या है, Second. क्योंकि ये बड़े बड़े एग्जाम्स में भी आता है, ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो EIVE आता है। सो एंटोनिम ऑफ ब्रेव, so who wants to answer this? What is the antonym of brave? Cowardly. Anyone? So I think Manoj sir, Cowardly. cowardly मतलब Darpok. डरपोक, यस। सो एंटोनिम ऑफ ब्रेव, सो ब्रेव मतलब हो गया बहादुर, उनका ऑपोजिट होगा डरपोक। सो कावर्डली इज द राइट आंसर। कावर्डली हम डरपोक को ही बोलते हैं। यस कावर्डली सही आंसर होगा। यस करेक्ट, वेल डन। नेक्स्ट, विच वर्ड इज कंजंक्शन? कंजंक्शन क्या होते हैं? Joining words. ज्वाइनिंग वर्ड्स, करेक्ट। सो जो किसी दो सेंटेंसेस को या फ्रेजेस को ज्वाइन करते हैं, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड एज कंजंक्शन। And तो एंड, इसमें बहुत सिंपल सा आ गया, एंड करेक्ट। अच्छा ये तो फिर बहुत ही चुन्नू मुन्नू से आ चुके 32. हैं ये ये तो दिस इज 22, ठीक है 22 is correct. What is 50 minus 18? 50 minus 18 is how much? 32. अरे ये गलत आ गया पीछे आंसर, 2 मिनट मुझे Yes. देखने दो। इसने 30 दिखा 32. दिया, बट यस 32 आना चाहिए, इसने गलत दिखा दिया। Yes, 32. यस ठीक है। 8 times 6 is how much? Who wants to answer? 8 times 6 is 8 6 are 48. yes 8 6 are 48. 48। यस मैथ्स टीचर कौन कौन बैठे हुए क्लास में अभी? यहाँ पे मीटिंग में मैथ्स टीचर, अच्छा हर्षा मैम है, और कौन है मैथ्स टीचर? No, जो no, मैं, sir. I am not maths teacher. अच्छा आपने हाथ रेस किया इसलिए मैंने, मुझे लगा आप कौन है मैथ्स टीचर? मैथ्स टीचर कोई नहीं है यहाँ पे मीटिंग में? Morning session. रोशनी मिस. अच्छा रोशनी मिस, चलो ठीक है हम आगे बढ़ते हैं। 48 है सर. अच्छा 72 डिवाइड बाय 9, कौन देगा फटाफट आंसर? 72 डिवाइड बाय 9, 8. 8 is correct. What is the square of 7? 49. 7 square is 49, 7 sevens are 49.
What is 25% of 100? 25. 25 is correct. So 25% of 100 is 25. Cube. What is the cube of 3? कौन देगा आंसर फटाफट? 27. 27 is the right answer. Yes. What is 2 cube? 2 का cube क्या होता है? 8. The answer is 8. Yes. 2 times 2 times 2 is 8. What is the root? Square root of 64. 64 कौन से नंबर का स्क्वायर है? 8. 10% of 50 is how much? 10% of 50. 5. 5. Yes, 5 is correct. Next. अच्छा, यहाँ पे पॉज करना पड़ेगा मुझे. ये इस वाले का आंसर कौन देगा? 12 प्लस 8 टाइम्स 2. इसमें बोर्ड मास लगाना पड़ेगा. बोर्ड मास पता होगा शायद 28. सभी को. सो यहाँ पे 28. 28. और किसी को कोई आंसर देना है? मैथ्स टीचर और एनी अदर टीचर. और ये सिर्फ मैथ्स टीचर का नहीं, हम सब ने ये पढ़ा है व्हेन वी वर इन स्कूल. सो बोर्ड मास पता है सभी टीचर्स को? बोर्ड मास पता है? बोर्ड मास. Yes, sir. पहले divide, multiply, addition, subtract. That's right. So let me open my this whiteboard. I'll try to explain to you. जैसे एक ये वाला क्वेश्चन का मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और मैं थोड़ा सा समझाने का बस कोशिश करता हूँ. यस, अब मेरी ये अलग सी स्क्रीन दिख रही है सभी को? ये मैथ्स की स्क्रीन दिख रही है सभी को? Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. बाकी टीचर्स हो गए? बाकी किसी का कोई आवाज नहीं आ रहा, हल्ला नहीं आ रहा? और सर नो है हाँ, लगी अच्छा. तो अच्छा, देखो ये वाला जो एक व्हाइट बोर्ड है, मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ ऑनलाइन तो ये वाला यूज करता हूँ. तो दिस इज कम्स अंडर बोर्ड मास. सो बोर्ड मास हम कब यूज करते हैं? जब हमारे पास मोर देन वन ऑपरेशन आ जाता है. ऑपरेटर्स किसको बोलते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इनको बोलते हैं ऑपरेटर्स. सो इसको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन. बहुत सारे टीचर्स इसको डिवाइडेशन बोलते हैं. डिवाइडेशन कभी भी नहीं बोलना है, डिवीजन बोलना है या तो डिवाइड बोलना है. देर इज नो सच वर्ड एज डिवाइडेशन. मैंने देखा है महाराष्ट्र में बहुत सारे बच्चे जब आते थे पढ़ने के लिए तो वो डिवाइडेशन बोलते हैं, लेकिन वो डिवाइडेशन होता कुछ नहीं है. इट इज ऑलवेज डिवीजन या डिवाइड. ठीक है. तो इसमें क्या होता है? बी से होता है. किसी को पता है बी से क्या होता है? बी से पहले आता है ब्रैकेट. पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं. फिर ये ओ से पता है किसी को? ओ से होता है Open. ऑर्डर. ऑर्डर होता है ऑर्डर. ठीक है. तो ऑर्डर में कैसे होते हैं? जैसे 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, एक्सपोनेंट और ये सब, वो ऑर्डर कहलाते हैं. तो ये बहुत कम यहाँ तक यूज होता है. फिर जो छोटे बच्चे होते हैं उनको यहाँ से स्टार्ट होता है. डी से हमारा डिवीजन आ जाएगा. ठीक है. देन मल्टीप्लीकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन. इस तरीके से आता है. तो अभी जैसे हमारे पास 12 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 2 है. अच्छा, मेरा ये काम करना बंद हो गया. मेरा राइटिंग बोर्ड काम करना स्टॉप हो गया, पता नहीं कैसे. तो यहाँ पे सबसे पहला कौन सा ऑपरेशन करेंगे हम लोग? पहले हम कौन सा करेंगे? लेकिन डिवाइड तो है ही नहीं हमारे पास. देखो क्वेश्चन में डिवाइड है ही नहीं. डिवाइड है ही नहीं हमारे पास. हमारे पास सिर्फ मल्टीप्लाई है और एडिशन है. तो पहला वाला हम कौन सा करेंगे? पहला वाला हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन. पहले multiply. पहले मल्टीप्लाई Addition. करेंगे. सो 8 टाइम्स 2 इज 8 2 जा कितना होता है? 16. 16. 16 प्लस 12 is how much? 28. 28. So that's how we solve these kind of questions. ठीक है. so इसका आंसर होना चाहिए 28. मेरा अच्छा चल गया, लकीली चल गया, सॉरी. तो यहाँ पे देखो हमारा क्वेश्चन है ये इस तरीके का. तो पहला हमने देखा डिवीजन है हमारे पास, नहीं है. मल्टीप्लिकेशन है. तो ये पहले मल्टीप्लाई इसको सॉल्व करेंगे. इसको 12 प्लस 8 2 16. अब ये अकेला रह गया, इनको से प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 28. So we'll go with the first option which is 28.
ठीक है, अब थोड़ा क्वेश्चंस फटाफट लेते हैं हम लोग। हाउ मेनी साइड्स डज अ हेक्सागन हैव? हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं? हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं? फर्स्ट, यस, सो देयर आर 6 साइड्स इन हेक्सागन, ठीक है। सो हेक्सागन में हमेशा 6 साइड्स होती हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे, अच्छा, नाउ आई कैन एक्सप्लेन हियर आल्सो। सो हेक्सागन ऐसा होता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हेक्सागन, सो 6 साइड्स वाले को हेक्सागन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसको हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये 6 आ जाएगा, ठीक है। फ्रैक्शन किसी को आता है? कौन कोई आंसर दे पाएगा इसका? फ्रैक्शन का आंसर कोई दे पाएगा? 1/2, 3/4. यस। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/2 प्लस 1/4, ठीक है। तो अगर हमको पहले डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, तो इसको 2 से, इसको 2 से, सो 1 2 2 और नीचे 4 प्लस 1/4। नाउ बोथ द डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, सो विल पुट 4 हियर एंड विल add the numerator, so 2 plus 1 is 3, so our final answer is 3/4। इसका देख लेते हैं आंसर क्या है। 3/4 है, यस, ऑप्शन नंबर 3 should be correct, yes, 3/4। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर? कौन आंसर देगा इसका फटाफट? पेरीमीटर हम सभी ने पढ़ा है। व्हाट डू यू मीन बाय पेरीमीटर? एनीवन? निर्मला मिस, व्हाट इज द पेरीमीटर? रोशनी मैम, शिल्पा मैम, हर्षा मिस, पेरीमीटर मतलब क्या होता है? पेरीमीटर, एनीवन? पेरीमीटर मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। सो इन स्क्वायर वी हैव हाउ मेनी साइड्स? इन अ स्क्वायर वी हैव हाउ मेनी साइड्स? टीचर्स, कम ऑन, नो वन इज आंसरिंग। A square, a I think square. 20. 20. Yes, the answer 20 is correct because a square has 4 sides and each side is of 5 centimeter. The 5 5. plus 5 हाँ. plus 5 plus 5, 5 4 are 20. So perimeter is nothing but the sum of all sides. ठीक है? So इसका आंसर 20 होना चाहिए। What is 99 minus 45? 99 minus 45 is 54। चलो अब मैं रैंडमली पूछता हूँ, ठीक है। मुझे अब पता लग गया, रैंडमली पूछता हूँ मैं। शिल्पा मैम, what is 7 times 8? Shilpa miss, what is 7 times 8? Shilpa miss, Yes, sir. 7 times 8 is how much? 7 8s are? 36 sir, 56. Yes, 56. Sorry. 7 8s are 56। तो इतना टाइम वैसे लगना नहीं चाहिए था। 7 8s are 56। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। Yes, who can answer this question? What is 144 divided by 12? चलो मैं पूछ लेता हूँ यहाँ से। रोशनी मिस, 12 sir. the answer is 12 because 144 is a square of 12. So जब हम 144 को 12 से डिवाइड करेंगे, so our answer should be 12. आई होप कि कैलकुलेटर्स नहीं खुले हुए हैं। No sir, no. अच्छा, चलो ठीक है। सो इसका आंसर होना चाहिए 12। ऑप्शन नंबर थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यस। 15%। परसेंटेज निकालना सभी को आता है? नहीं आता है तो बता दो, अभी बता देता हूं मैं। आता है कि नहीं आता है? हेलो, यस नो, आता है नहीं आता है? 30 sir. रोशनी मिस और कोमल मिस, मनीषा मैम, निर्मला मैम। So 30. 45. देखो, जब परसेंटेज हमें निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? 15% ऑफ
200 है। तो हम लोग क्या करते हैं 15, ये जो परसेंटेज है जब हम ये हटाते हैं तो नीचे में 100 लिखते हैं, इस ऑफ को हटाते हैं, मल्टीप्लाई लिखना है, यहाँ पे 200 करना है। तो यहाँ पे हम लोग नीचे देख रहे हैं, इसके पास 2 0 इसके पास 2 30 0 वो कट गया। सो नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली 15 टाइम्स 2, so that is 30। सो हमारा आंसर क्या होना चाहिए 30, विच इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यस 30 इज करेक्ट। इसका आंसर कौन देगा? 3. How many angles How many does angles a does a triangle have? triangle have? Yes, so how many angles are 3. there? 3, correct। 3. 3, yes 3 is correct। और 2 मिनट में इसको इरेज कर देता हूँ। ये वाला आसान था, 3 एंगल्स होते हैं। व्हाट इज अंडर रूट ऑफ 100? अंडर रूट मतलब कोई बताएगा? अंडर रूट मतलब दिस इज कॉल्ड एज स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 इट मींस कि 100 का पावर हाफ है। तो कौन से नंबर का स्क्वायर जो है 100 होता है? 10 का स्क्वायर होता है ना, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, और ये मल्टीप्लाई बाय हाफ। सो दिस टू एंड दिस टू गॉट कैंसल्ड, सो अवर फाइनल आंसर इज 10। सो जो थर्ड ये वाला ऑप्शन है ये वाला सही है। अंडर रूट का मतलब ये बस यही होता है सिंपल टर्म्स में कि जो अंदर जो नंबर लिखा हुआ है वो कौन से नंबर का स्क्वायर है। सो 100 इज ऑब्वियसली इट्स अ स्क्वायर ऑफ 10, सो दैट्स हाउ वी गॉट आवर आंसर एज 10। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, ये मैं कोई भी रैंडमली उठा देता हूँ, कोई बीच में आंसर नहीं करेगा। लेट मी पिक रैंडम टीचर्स। वर्षा राजपूत मैम, प्लीज टेल मी व्हाट इज 20 टाइम्स 5? 100. 100 इज करेक्ट, यस। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसका आंसर कौन बताएगा? कौन बताएगा इसका आंसर? मैथ्स का कोई भी टीचर नहीं बैठा है। उपाली मैम आप बताएंगे? उपाली मैम है यहाँ पे? 2/4. सॉरी, इसका क्या आंसर होगा? कोई भी टीचर? मनोज सर? Answer is 1. Yes, the answer is 1. See how? यहाँ पे 3/4 है प्लस 1/4 है। सो हमको पता लगा कि दोनों डिनोमिनेटर सेम है, सो हमने 4 लिख दिया। न्यूमरेटर को प्लस कर लेना है, 3 + 1। सो 3 + 1 इज हाउ मच? 4। एंड डिनोमिनेटर में भी 4, जब ऊपर नीचे सेम हो जाते तो कैंसिल हो जाते, 4 1 = 4, 4 1 = 1। ठीक है, सो यहाँ पे इस तरीके से 4 1 = 4, 4 1 = 4, सो दैट्स हाउ द आंसर इज 1। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट, एरिया। एरिया पता है सभी को? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं? जैसे ये 20. हाँ, जैसे ये रेक्टेंगल है एक, इसमें अगर मुझे यहाँ पे देना है एक, ये 5 ले लेते हैं, इसको 4। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड। ठीक है, सो लेंथ इज 5 × 4, 5 × 4 इज 20। द आंसर 20 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट। 4 का स्क्वायर कौन बताएगा? झटपट फटाफट जल्दी जल्दी बताओ। 4 का स्क्वायर इज 16, sir. यस, 4 स्क्वायर इज 16। 4 स्क्वायर मतलब ये, इसको बोलते हैं हम लोग बेस, ये होता है हमारा एक्सपोनेंट। तो बेस को ही 2 बार करना है, 4 4 = 16। 16 आंसर इज करेक्ट। सिक्सटी डिवाइड बाय 5 इज 60 डिवाइड बाय 5 कितना होगा? कौन आंसर करना चाहेगा इसको? 12, sir. 60 डिवाइड बाय 5 इज 12.
12. 12. Yes, 12 is correct. 12. Yes. Oh, ये क्या हो गया? इसने गलत दे दिया आंसर. What is H2O? H2O हम सभी ने पढ़ा होगा. H2O stands for किसका केमिकल Water. फॉर्मूला है? Water, वाटर. sir. वाटर का, Hydrogen. यस, वाटर का, वाटर, ये वाला वाटर. वाटर इज करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं. हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन अवर सोलर सिस्टम? साइंस टीचर निर्मला मैम. How 8. many 8. 8? 9, sir. Yes. 9. No, no. So now, ma'am, there are only 8 planets in our solar system. Earlier, it used to be 9. हाँ, पहले के टाइम पे प्लूटो था. प्लूटो को भी हम 9 नहीं, मतलब प्लेनेट ही मानते थे. बट अभी शायद 2006-7 के आसपास कुछ उसको प्लेनेट नहीं माना, क्योंकि इट वाज नॉट फुलफिलिंग द क्राइटेरिया टू बी अ प्लेनेट. तो इसीलिए अब जो How many हमारा, serious, sir? Okay. हाँ, जो प्लूटो है उसको ड्वार्फ प्लेनेट बोला गया है. बट यहाँ प्लेनेट पूछा है, तो विल गो विद ऑप्शन नंबर बी, विच इज 8. 8, sir. Okay, sir. 8 के साथ जाएंगे. ठीक है. यस, 8 इज करेक्ट. नाउ, अच्छा, सिंबल ऑफ गोल्ड कौन बताएगा? टीचर्स, साइंस टीचर और एनीवन. व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड? गोल्ड के लिए कौन सा केमिकल सिंबल AU. होता है? AU इज करेक्ट. AU. वेरी नाइस. यस, AU इज करेक्ट. AU करेक्ट है. ठीक है, नेक्स्ट के साथ जाते हैं. व्हाट डू प्लांट्स नीड्स टू ग्रो? प्लांट को क्या क्या चाहिए ग्रो होने के लिए? Second, water, Sec- sunlight, and nutrients. Yes, water, sunlight and nutrients to grow. Next, what is the speed of light? कौन बताएगा speed of light क्या होती है? What is the 3 speed of lakhs. light? Yes, 3 3 lakhs. lakhs. Yes, 3 lakhs kilometer per second. This option is correct. Option number 3. 3 lakhs kilometer per second is correct. Which gas do we breathe in? रुक जाओ, मुझे पूछने दो. मैं अभी randomly पूछता हूँ. No one will answer. प्रीति मिस, प्रीति मेहरा मैम, मनीषा मैम. अच्छा, प्रीति मैम. Yes, sir. हाँ मैम, which gas do we breathe in? Please pick one option out of 4. Nitrogen. Nitrogen is incorrect. Who wants to try? Manisha Oxygen, ma'am. sir. Oxygen. Oxygen. Yes, oxygen is correct. So breathe in. हम कौन सी सांस को अंदर लेते हैं? So we breathe in oxygen. One, I think. ठीक है, moving to next. ठीक है, let me pick one teacher. No one will answer. So इसमें से मनीषा मैम, Skin. मनीषा मैम, मनीषा शिंदे. Skin. Which is the largest organ in human body? Yes, so the answer skin is correct. ये मनीषा मैम ने आंसर दिया. किसने आंसर दिया स्किन? प्रीति मेहरा. अच्छा, नहीं, फिर ये दूसरे टीचर्स अभी हैं लाइन पे या फरार हो गए? फरार चल रहे हैं सब. अच्छा, चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं. हाउ मेनी बोन्स डज एन एडल्ट ह्यूमन हैव? ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. इसका आंसर कोई भी दे सकता है. हाउ मेनी How many bones does an adult human have? कितने हड्डियां होते हैं हमारे बॉडी में? 246. 246. निर्मला मिस, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? 206, sir. 206 is correct. So 206 हड्डियां होती है हमारे बॉडी में, ह्यूमन एडल्ट में. What is the force that pulls object to earth? तो अर्थ के यहाँ पे कौन सी फोर्स है जो पुल करती है? मैग्नेटिज्म, Gravity. फ्रिक्शन, ग्रेविटी एंड बायोएंसी. यस, ग्रेविटी इज करेक्ट. नेक्स्ट, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? कौन बताएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है? 100 degree Celsius. 100. Yes, 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. 100 डिग्रीज पे जो वाटर है वो स्टीम बनना स्टार्ट हो जाता है. नेक्स्ट, व्हाट डू एनिमल्स प्राइमरली नीड टू सर्वाइव? एनिमल्स को क्या चाहिए प्राइमरली सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए? Sir, Food, second. water, and oxygen. Yes, food, water and oxygen is Second. correct. What is photosynthesis?
What is photosynthesis? Second, plant making Second, food using second. sunlight. Yes, Plant plants making making food food using using sunlight. So photosynthesis is the process when plants make their food using water, sunlight, and nutrients and carbon dioxide. Which planet is closest to the sun? Sun से सबसे पास में कौन सा planet है? Earth. अर्थ है सबसे पास में. Mercury. 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 मरकरी. इसका आंसर देख लेते हैं. यस, आपने वो सुना है माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स? वो शॉर्टकट है याद रखने के लिए. व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर आयरन? लोहे के लिए कौन सा सिंबल होता है इन चारों में से? आई आर, एफ ई, आई एन, आई ओ. First, iron. आई आर, In Yes. Fe, Uh, ferrous. एफ In- ई. in- यस, दिस ऑप्शन इज in- करेक्ट. दिस इज द केमिकल सिंबल फॉर आयरन, एफ ई. ठीक है, ये वाला सही है. एफ ई इज करेक्ट. देखना, आप देख लो. एफ ई सही होना चाहिए इसमें. यस, एफ ई इज द सिंबल फॉर आयरन. लोहे के लिए एफ ई यूज करते हैं. ये देखो कितना सिंपल. हाउ मेनी चेम्बर्स डज अ ह्यूमन हार्ट हैव? ह्यूमन हार्ट में कितने चेम्बर्स होते हैं? यस, सो देयर आर 4 चेम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट. व्हाट डज फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस? फोटोसिंथेसिस क्या प्रोड्यूस करता है? Oxygen and glucose. Oxygen and glucose is correct. Very nice. Next, what is the freezing point of water? Water का freezing 0 point क्या degree है? Celsius. 0 degree Celsius is correct. Next, 7. yes. Seven. How many continents are there? कितने महाद्वीप है? 7 continents are there. What is the smallest unit of life? Who wants to answer this? Atom. 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 Harsha Cell. miss. Cell. Yes, cell is the Cell. right answer. Yes. What is the smallest unit of life? अगर है ना स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर आता तो वहां पे हम एटम बोलते हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट लाइफ. सो सेल. हमारे बॉडी का सबसे छोटा यूनिट क्या है? सो सेल. नेक्स्ट, विच इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इन अर्थ एटमॉस्फेयर? व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इन अर्थ एटमॉस्फेयर? Nitrogen. Carbon dioxide. अबंडेंट मतलब हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस है? Nitrogen. नाइट्रोजन. इवन आई थिंक सो. आई थिंक 71 और Carbon 72% कुछ होगा. नाइट्रोजन होना चाहिए. लेट्स सी, इसका आंसर चेक करते हैं. यस, नाइट्रोजन इज present in abundantly in our earth atmosphere. How many chromosomes do human have? अगर किसी ने साइंस पढ़ा होगा तो वो आंसर कर सकता है. यस, 46. yes, 46. 46 is correct. Four- Yes, so there are 23 pairs of chromosomes. So अगर हम उनको ऐसे काउंट करेंगे so 46 is correct. Next, what type of animal is a dolphin? Dolphin किस टाइप का एनिमल है? फिश है, एम्फीबियन है, मैमल है या रेप्टाइल है? Amphibian. क्या है? Fish. एम्फीबियन. एम्फीबियन. हाँ. So एम्फीबियन वो एनिमल्स होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं. तो डॉल्फिन पानी में मतलब जमीन पे भी रहती है. देख लेते हैं इसको. मैमल. मैमल कहाँ से होगी डॉल्फिन? नहीं नहीं, डॉल्फिन मैमल नहीं हो Mammal. सकती. मैमल वो शायद गलत है मुझे लगता है. व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर कार्बन? सबसे सिंपल, कार्बन का केमिकल सिंबल क्या होता है? C. सी. यस, CO. कार्बन को हम सी से डिनोट करते हैं. सो दिस C. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. सी. हाउ मेनी टीथ डज एन एडल्ट ह्यूमन हैव? हमारे मुंह में कितने दांत होते हैं? 32. 32. 32. यस, दैट्स राइट. व्हाट इज द, अच्छा, और हमको पता है कौन कौन से टाइप के दांत होते हैं? साइंस टीचर कैन आंसर दिस. व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ टीथ डू वी हैव? Incisors, canines, premolar, molar. Very nice. Incisor, canine, premolar and molar. Wonderful. What is the powerhouse of the cell? इन चारों में से powerhouse of the cell किसको बोला जाता है? ये Mitochondria. Mitochondria. That's right. Mitochondria is called as the powerhouse of the cell. यहाँ से power generate होती है for cells.
अब आते हैं हिंदी टीचर्स। हिंदी टीचर्स कौन कौन है हमारे पास अभी? स्वागत, हिंदी टीचर्स। अच्छा चलो हम स्टार्ट करते हैं। नमस्ते का अर्थ क्या है? अलविदा, स्वागत है, धन्यवाद, स्वागत कृपया। है। स्वागत है। नेक्स्ट, भारत की राजधानी कौन सी है? नई दिल्ली। नई दिल्ली, करेक्ट। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? सूर्य का पर्यायवाची रवि। शब्द क्या है? रवि, वेरी नाइस, रवि, रवि। करेक्ट। भारत में कितने राज्य हैं? 20, 30, 30, फोर्थ, नहीं, नो, सॉरी सर, सेकेंड। कितने राज्य हैं भारत में टीचर्स? 28. 20, 28, yes, 28. 28 is correct. 28 is Second one. correct. Yeah, we can also check our answer. Wait for 5 seconds. Yes, 28 is correct. 28. पुस्तक का बहुवचन क्या होता है? पुस्तकें। पुस्तकें, वेरी नाइस, पुस्तकें, ये भी देख लेते हैं, पुस्तकें। ओ, दोनों सही है। अच्छा, पुस्तकों और यहाँ पे कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? कमल का पर्यायवाची शब्द और सर, मुझे मुझे तो सभी सही लग रहे हैं। फूल, पुष्प, पद्य, मुझे सभी सही है, मुझे ऐसा लगता है। चेक, सर, पद्य आता है। हाँ चेक कर लेते, पद्य मुझे आता तो, है सर। हाँ मुझे तो सभी सही लग रहे हैं, क्योंकि पुष्प, ये देखो, पुष्प मतलब भी फूल, फूल, हाँ। फूल। यस, नेक्स्ट, भारतीय संविधान को किसने लिखा है? डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब आम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यस, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सो चेक कर लेते हैं। ये तो इसमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, इट्स ऑल क्लियर। यस, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, शिक्षा। शिक्षा का विलोम शब्द क्या है? अशिक्षा। अशिक्षित। अशिक्षा, यस। नेक्स्ट, आकाश का रंग कैसा होता है? नीला। नीला। पि, पिता का विलोम शब्द क्या है? पिता। विलोम शब्द। माता, इतना क्या सोचना पड़ रहा है? यस, विलोम शब्द इज माता। ऑपोजिट, सो पिता किसका विलोम शब्द है? माता का, माता। करेक्ट। माता। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा, यमुना। यमुना। ये गंगा होना चाहिए। मैं गंगा के साथ जा रहा हूँ। मैं यमुना के साथ जा रही हूँ। चलिए चलते हैं। यस, गंगा। सो रिवर गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। संसद का अर्थ क्या होता है? सभा, विधायिका, कानून बनाने वाली संस्था, सभी सही है। सभी मेरे सही। मेरे हिसाब से ये वाला होना चाहिए, कानून बनाने वाली कानून संस्था। बनाने वाली संस्था। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। सभी सही है। अच्छा, मित्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? अच्छा, सभी सही है, इसमें भी सभी सही है। साथी, सखा, दोस्त, हाँ सही है। भी सही भारत है। के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वोत्तम। राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजेंद्र was the प्रसाद, right answer. Yes, राजेंद्र this is the right answer. नेक्स्ट, हृदय का पर्यायवाची शब्द क्या है? दिल, मन, कलेजा, दिल। सभी सही है। अच्छा, सभी सही है। सभी विद्या सही। का अर्थ क्या है? ज्ञान। ज्ञान, ज्ञान। ज्ञान। यस। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? जन जन गण मन। गण। पत्र का बहुवचन क्या है? पत्री। पत्रे, पत्र का बहुवचन, दोनों सही है। प्रकाश का विलोम शब्द क्या है? अंधकार। अप्रकाश। अंधकार, अंधकार, अंधकार। अंधकार। यस। भारत के राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? राष्ट्रगीत किसने लिखा है? रवींद्रनाथ टैगोर। रवींद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। महाराष्ट्र। माता का पुल्लिंग रूप क्या होता है? पिता। 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 यस। उत्तर का पर्यायवाची शब्द क्या है? जवाब। जवाब। मुझे तो सभी सही लग रहा है। अच्छा, सभी सही है। भारत को सोने की चिड़िया किसने कहा? किसने कहा था भारत को सोने की चिड़िया?
महात्मा गांधी. Albert, अच्छा वो चलेगा, ये वाला था, मेगास्थनीज ने कहा था। नेक्स्ट, शांति का विलोम शब्द क्या है? Ashanti. अशांति, करेक्ट। अशांति. एंड वन फाइनल क्वेश्चन, दिस इज आवर बुद्धि का पर्यायवाची शब्द क्या है? सभी. सभी, सूझ, सही है, सभी सभी है। सही है। चलो, तो विद दिस इज द एंड ऑफ आवर सेकेंड प्रेजेंटेशन ऑल्सो। सो आप सभी को कैसा लगा प्रेजेंटेशन? बहुत बोरिंग था, आधे आंसर भी नहीं दे रहे थे। No, sir, बहुत अच्छा था। लेकिन ये सही है, इस तरह का अगर होगा तो हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स प्लस आवर सब्जेक्ट नॉलेज, नॉट ओनली विद आवर सब्जेक्ट बट फॉर अदर सब्जेक्ट्स आल्सो, कि जो बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं, एक हमारा रिवीजन टाइप हो जाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन जॉइनिंग दिस मीटिंग। आई होप यू लाइक टुडेस मीटिंग। मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग Thank में, you, sir. है ना? Thank you, sir. ओके, बाय बाय एवरीवन। Thank you, sir. Good day. ओके, Thank you, sir. बाय। Thank you, sir. वेलकम वेलकम, बाय बाय बाय। Okay, Harsha miss, you can leave the class.